Okay, so immediately start now. Okay, so I think in last lecture I have already completed that line integral part. Okay, and there are different cases. Also, we have completed few examples directly. Okay, so let me also take a few MCQs. Okay, hardly one or two MCQs. ठीक है. So the first question is this. It is not working. Just give me 1 minute. Okay. So these are the MCQs on that line integral part. So I will take few MCQs. We'll just give you a hint. Okay. Is it visible? बोलो. Yes. Yeah. So the work done moving a particle, जितने मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूँ उतने आपको प्रिपेयर करने हैं फाइनल एग्जाम के लिए. ओके. सो ज़्यादा कुछ आउट ऑफ द, क्योंकि इसके एमसीक्यूज आपको ज़्यादा कहीं पे नहीं मिलेंगे. सो आई विल ट्राई टू कवर ऑल इन लेक्चर इटसेल्फ. So the work done in a moving particle in a force field F bar along the curve this from t equal to 0 to 1 is. Okay, what is the formula of work done? मैं बस हिंट देने वाला हूँ, सॉल्व आपको करना है. What is the formula of work done? W is equal to, it's actually a line integral. So line integral which is equal to integral over C. Yes. Yes, dear. F bar dot product with dr bar. So it is nothing but, so can I write directly as 2x plus y dx plus 3y minus x dy, correct? So this is our curve C. Now you have to convert this integral into single integral. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सब्स्टिट्यूशन लेना होगा, and that substitution is already given in the question. इस टाइप के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में रहेंगे. So we have already given the substitution for x and y in terms of t. तो आपको क्या पुट करना है? x is equal to 3t and y is equal to 2t. So what this implies? dx क्या होगा? 3 into dt and dy क्या होगा? 2 into dt. Okay. So it is equal to integral 2 times x. So it is 6t plus y is 2t. Dx is 3 dt plus 3y, that is 6t, minus x is 3t into dy is 2 dt. Okay, and where t vary from 0 to 1. 0 to 1. Done. ठीक है. Now you can easily complete this. ये हो जाएगा ना आगे आपसे, and check which option is correct. तो ये भी शीट एज इट इज आपसे शेयर करने वाला. इसके आगे आपको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना होगा इसको. So t vary from 0 to 1. Okay, 6 plus 2 is 8, and this is 24. 24 and 24t plus, sorry, 6 minus 3 is 3 and plus 3 into 2 is 6. So what is this? 30 na? Correct hai? Yes, sir. So what is the answer? 15. 15. तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में रहेंगे. ठीक है. So now let me take another question. The line integral. Okay, let me take there.
So the line integral f bar dot dr bar आपको कैलकुलेट करने में f bar is given along the straight line joining these points. But उन्होंने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन दिया है, तो आपको ये वो इक्वेशन कंसिडर करने की भी जरूरत नहीं है. That substitution is already given. So what is in the solution? So line integral is equal to f bar dot dr bar over curve C, which is equal to so 2xyz dx plus x square z dy plus x square y dz over curve C. And what is given? Put x is equal to t, y is equal to t, and z is equal to t. So what this implies? Dx is dt, dy is also dt, and dz is also dt, and t vary from and x and t both are equal, and x के लिमिट 0 to 1 है, तो t के लिमिट्स क्या आएंगे? 0 to 1. 0 to 1. Good. Okay. So now just put the values. So it is equal to integration t vary from 0 to 1. So x y z की वैल्यू t है, सबकी वैल्यू t है, तो it become 2t cube, okay, into dt plus t cube dt plus t cube dt. Okay, so this is nothing but t vary from 0 to 1. 2 plus 1 plus 1 is 4, 4t cube means what? T raised to 4 by 4 cancel हो जाएगा. What is the answer? 1. So 1 is that. ठीक है. So next ग्रीन से हमका अभी आज ही लेना है वो. हाँ, तो इसका वेटेज ज़्यादा होगा, ये इजी सेक्शन में जाएगा. Tell me about this now. F bar is given, वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल की आपको कैलकुलेट करनी है. So line integral is equal to f bar dot dr bar, which is equal to what? और आपको क्या गिवन है? फॉर द कर्व जॉइनिंग द पॉइंट 0 0 एंड 1 1. तो कर्व गिवन है ना, कर्व का इक्वेशन गिवन है डायरेक्टली. ठीक है, सो क्या होगा? दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई ओवर कर्व सी. व्हाट इज योर नेक्स्ट पार्ट? एज वी हैव गिवन द कर्व, तो क्या करना है आपको? Substitution. हाँ, so use that curve for a substitution. Just put y is equal to x. That implies dy is equal to dx. And if I consider this, y के जगह पे अगर मैं x रखता हूँ तो x में कोई चेंज नहीं है, तो this become x square और dy की वैल्यू dy. Now what is the limits of x? x के लिमिट 0 to 1. So sorry, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? dx. So it is 2x square and x square का इंटीग्रेशन आ गया x cube by 3. So I think it is 2 by 3 ना? Yes, sir. So answer is 2 by 3. Next, यही as it is questions रहने वाले. हाँ, so ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आप क्या पुट करोगे? आप y square इक्वल टू पुट करोगे या x इक्वल टू पुट करोगे? क्या इजी रह जाएगा आपको? लेट मी शो यू. x equals to. हाँ, तो ये बस आपको इसी चीज़ें बस याद रखनी है. ओके, इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, आपको y स्क्वायर इक्वल टू x गिवन है, तो बेटर वे यू पुट x इज इक्वल टू y स्क्वायर. स्क्वायर की वजह से इसको अवॉइड ही करो. तो इस क्वेश्चन में, सो लेट मी जस्ट गिव यू हिंट. सो इट इज x स्क्वायर dx प्लस xy dy ओवर कर्व c, एंड जस्ट पुट x is equal to y square. That implies dx is equal to 2y dy. So now this become x की जगह पे y रखना है. So it is y raised to 4. dx is 2y dy. X is y square, so it is y cube dy. And y vary from 0 to 1. So क्या आंसर होगा इसका? That you can check. अभी मैं होल्ड पे रख रहा हूँ. Okay, that you can check. समझ में आ रहा नहीं है? या आप करते हो तो मुझे बोलो.
So next Excuse is me, sir. हाँ, So we always take it from 0 to 1, or how we decide the limits? it is given ना, that point is given ना. So 0 0 2 1 1, तो ये जो होता है ये x के वैल्यूज है ना, ये x के Yes, लिमिट sir. से, ये y के लिमिट से. Okay, so it depends on the point. It means here if I change this point to 2 2, in that case your limits of y become 0 to 2. Okay, are you getting my point? Yes, sir. Okay. So next हाँ, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की है, बट मैं MCQ पैटर्न के हिसाब से थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू. हाँ, सो इस क्वेश्चन में ओके मैंने बस फोर्थ ऑप्शन को नहीं ऐड किया है, ठीक है. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज लाइन इंटीग्रल? इट इज 3x स्क्वायर dx प्लस 2xz minus y dy plus z dz along a straight line. That point is given 0 0 0 2 2 1 3. That line is a straight line. So can you tell me what is our approach? What is curve C? Curve C क्या है? x2 minus x1. हाँ, so it is actually x minus x1 upon x2 upon minus x2 x1, y minus y1 upon y2 minus y1, and z minus z1 upon z2 minus z1. Let consider equal to t. So therefore you will get x is equal to 2t. Okay. Next is y is equal to t and z is equal to 3t. फिर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे dx is 2 dt, dy is just t, and dz is 3 dt. And what are the limits of t? Can you tell me? 0 to 1. हाँ, क्योंकि आप कहीं पे भी पुट करो, x के लिमिट आपको यहाँ से पता ही है ना, x के लिमिट है 0 to 2. तो जब आप x0 पुट करते हो t0 आता है, जब आप x2 पुट करते हो t1 आता है. सो द लिमिट्स ऑफ t आर फ्रॉम 0 to 1. इन दिस वे यू हैव टू फाइंड दोस लिमिट्स. और ये किसी भी वेरिएबल के लिए आप चेक करो, लिमिट्स विल बी सेम. मतलब x के लिए चेक करो, y के लिए चेक करो, z के लिए चेक करो, इट इज सेम. ठीक है. सो ये बस हिंट है, यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन. समझ में आ जाएगा ना इतना किया तो मैंने? yes or no? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. क्योंकि फिर ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे नहीं तो फिर. हाँ, so I think now this question number 13. Okay, let me zoom this. Are you able to solve this now? I will not share this question bank. So accordingly you have to prepare. Question number 13 हो जाएगा. कर्व का इक्वेशन गिवन है और x and y के लिमिट्स क्या है? 0 to 2. yes or no? Yes, sir. हाँ, 14 सेम क्वेश्चन है, y स्क्वायर इक्वल टू x. ओके, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर पुट करो एंड x के लिमिट है 0 to 1. सो आई थिंक दैट इज ऑल अबाउट दिस लाइन इंटीग्रल. इसके बाद क्वेश्चन नहीं आने वाला. एंड नाउ लेट मी टेक द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है. तो आई थिंक लाइन इंटीग्रल मैंने जितना हो सकता है उतना इन डिटेल में ही कवर किया. नाउ नेक्स्ट थ्योरम. यस, सो द नेक्स्ट रिजल्ट इज ग्रीन्स थ्योरम. ओके, सो ऐसे आपके अब देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, वी हैव इन आवर सिलेबस वी हैव टू कंप्लीट ग्रीन्स, स्टोक्स एंड डाइवर्जेंस. आई विल ट्राई टू कंप्लीट एटलीस्ट 2 थ्योरम्स इन टुडेज. देखते कितना होता है. सो लेट मी टेक द ग्रीन्स थ्योरम. तो ग्रीन्स थ्योरम में क्या है? we have given two dimensional vector. So let f bar is equal to m into I bar n into j bar. याद रखो ये 2 dimensional vector है. So Green's theorem is only for 2 dimensional vector. Be any vector, S is the surface enclosed by a curve C. इसका मतलब क्या होता है? अगर आपका सर्कल है, ठीक है, so yes ये आपका सरफेस होगा which is enclosed by this curve C. बाउंड्री आपकी सी है, लाइक दैट. ओके, देन द लाइन इंटीग्रल ओवर कर्व सी ऑफ mdx plus ndy is nothing but the double integral over a surface of del by del x minus del by del y dx dy. So this gives the relation between your line integral and double integral. ये एक रिलेशन होता है कि अगर आपको यहाँ पे लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है तो आप डबल इंटीग्रल से भी जा सकते हो.
ओके तो आप लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हो कर्व के लिए, ओके दिस इज योर कर्व सी, इस कर्व के लिए आप लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हो, दिस इज नथिंग बट अगर आप इससे जो बाउंडेड हो रहा है जो आपका सरफेस है वो सरफेस अगर आप यूज करते हो देन यू कैन consider this line integral in terms of surface integral. So this theorem just gives the relation between line integral and double integral or single integral and double integral. Okay. क्या है? So ये आपको पता होगा. I think you already learned in multivariate calculus. In general, double integral dx dy gives you over a surface gives you area. पता है ना आपको ये? आपने फॉर्मूला देखा है ना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया डबल इंटीग्रल में क्या था, इंटीग्रल dx dy है ना, ये कार्टेशियन में था और पोलर में क्या था r dr d थीटा. सो इन जनरल दिस dx dy ओवर सम सरफेस ओके इज ऑलवेज गिव्स यू एरिया. ओके सो रिमेंबर दिस रिजल्ट क्योंकि इसका यूज आप करने वाले हो. ओके नाउ इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस एग्जांपल्स आई विल डायरेक्टली टेक सम एमसीक्यूज. ठीक है सो लेट मी कम टू नाउ दिस. So before I start, let me again explain what is Green's theorem. कैसे याद रखना, इसमें क्या क्या प्रिपेयर करना है. This theorem is only for two dimensional vector. So let me take a two dimensional vector. So f bar is equal to f1 into I cap, f2 into j cap. Okay, and S is the surface. S is the surface bounded by curve C. Correct? Then what? The line integral over a closed curve. Okay? ये close ही दिया है ना? Let me just check. Close ही रहता है वहाँ पे. Over a closed curve C of MDX. तो ये नोटेशन बस मुझे चेंज करने होंगे. I think this is my m into I. सेम नोटेशन से जा रहा है तो आपको कंफ्यूजन होगा. ठीक है सो MDX यहाँ पे समझ में भी आता है. I मतलब x का कोएफिशिएंट होता है तो इसलिए MDX x कोऑर्डिनेट होता है इंटू NDY इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर अ सरफेस ऑफ डैबा n बाय डैबा x. n विद रिस्पेक्ट टू y था तो यहाँ पे x करना है माइनस डैबा m बाय डैबा y dx dy. रिजल्ट समझ में आ रहा है? ये आपका रिजल्ट है. Here you will get a relation between a surface bounded by a curve C. So in that case line integral is nothing but this surface integral. Now let me take some examples. तो ये और क्लियर हो जाएगा. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसलिए इसमें आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना कुछ डिफिकल्ट जाएगा. ये टॉपिक स्कोरिंग है. I will complete all the possible examples. So there are many questions on this. What about this first? क्या बोला है उन्होंने? Using Green's theorem. Okay. Remember, let me correct that part also. Can you tell me what is this? इसका can you tell me one more way to write this MDX into NDY? Huh? Can anyone tell me one more way to write this MDX plus NDY? F bar. Very good. It is nothing but F bar dot dr bar. हाँ क्योंकि आपको पता है F bar is this mi nj, dr होता है dxi dyj, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही यही है. ठीक है तो थ्योरम आप इस फॉर्म में भी याद रखो, इस फॉर्म में भी याद रखो, किसी भी फॉर्म में. यहाँ पे देखो उन्होंने F bar dot dr bar के लैंग्वेज में दिया है बिकॉज एट द एंड इट्स अ लाइन इंटीग्रल. It's a line integral. Okay. Yeah. So by Green's theorem, okay, of f bar dot dr bar using Green's theorem, this is nothing but Green's theorem में f bar के कोएफिशिएंट m and n लेना है तो इसलिए इसका होगा mdx plus ndy and it is equal to the double integral over a surface s daba n by daba x minus daba m by daba y dx dy. What is given? C is this curve. ये कर्व आपके पास है. ठीक है और आपके पास m की वैल्यू क्या है?
कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज m हियर? हाँ, m क्या है? अभी देखो यहाँ पे, नाउ टेल मी व्हाट इज m? -1. -y, i का कोएफिशिएंट m होता है, ठीक है, ये कंफ्यूजन करने के लिए होगा. m इज -y एंड व्हाट इज n? x, ठीक है. एंड व्हाट इज कर्व c? c इज द इलिप्स, मतलब इलिप्स की बाउंड्री है. x² अपॉन a² आई गेस, ओके, प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ठीक है. ना सो इट इज इक्वल टू, अभी बोलते जाओ बस आप, डबल इंटीग्रल ओवर अ सरफेस. सरफेस अब यस क्या है? इलिप्स है, करेक्ट ना. सी क्या होता है? सी इज द बाउंड्री, सॉरी इलिप्स है ना, सर्कल क्यों ड्रॉ कर. सो दिस इज माय इलिप्स, ठीक है, ये आपका इलिप्स है. तो ये अंदर का जो होता है वो उसका सरफेस होता है, ये एस होता है, और ये बाउंड्री जो है दैट इज कर्व सी, ठीक है. नाउ सो टेल मी डावा बाय डावा एक्स क्विकली, डावा बाय डावा एक्स, n का विद रिस्पेक्ट टू x 1 ना, n इज x, तो n का विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, माइनस m का विद रिस्पेक्ट टू y -1. so it become +1 dx dy. so this is nothing but 2 times double integral over a surface dx dy. क्या होता है ये? सरफेस यस इलिप्स है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? हाँ, डबल इंटीग्रल dx dy over a surface, yes is the ellipse. so इसका मीनिंग क्या है? what is the geometrical meaning of this? अभी तो एरिया ऑफ एरिया ऑफ इलिप्स, हाँ, क्योंकि वो इलिप्स था. एंड व्हाट इज एरिया ऑफ इलिप्स? πAB. वेरी गुड. सो योर आंसर इज 2 पाई AB. ये क्या कहीं पे देखो, नहीं है, ओके, उतना तो उन्होंने पूछा ही नहीं था. तो क्या आंसर है इसका? क्या आंसर है? 2 टाइम्स dx dy ना. देखो यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक्स है साइन में, आर में, ओके, लेट इट बी. उन्होंने आर लिया होगा रीजन, हमने यस लिया है, ओके, दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है. हमने तो और भी आगे सॉल्व किया था उसको, ठीक है. या लेट मी टेक दिस एग्जांपल, ओके. तो इसमें इजी सेक्शन में तो बस आपको वैल्यूज पुट करके ही लिखना है, आगे का पार्ट है ही नहीं. लेट मी टेक दिस एग्जांपल आगे. हाँ, ये सॉल्यूशन. अब भी आप बोलो. सो ग्रीन्स थ्योरम से, बाय ग्रीन्स थ्योरम, what is value of f bar dot dr bar? That is nothing but m dx plus n dy is equal to what? It's a double integral over a surface S, dabba n by dabba x minus dabba m by dabba y dx dy. Okay, now you tell me what is m here? What is m? Y cube. m is I का कोएफिशिएंट y cube, okay. What is n? -x cube. -x cube. and s क्या है? is the circle, है ना. तो यस यही होगा, is the circle ना. तो s क्या होगा? x² y² इक्वल टू a², ठीक है. इसको मैं कर्व लेता हूँ, कर्व ये बाउंड्री है, x² y² इक्वल टू a² कॉमा z इक्वल टू 0. बेसिकली कर्व क्या है? सर्कल है, ओके, सर्कल है. तो कर्व समझ में आती तो उसके कर्व के अंदर जो एरिया है दैट बिकम योर सरफेस. सो इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. या टेल मी नेक्स्ट. सो इट इज इक्वल टू ओवर अ सरफेस S. टेल मी dabba n by dabba x minus 3x square minus dabba n by dabba y, ठीक है, and dx dy. So which option is correct? Which option is correct? B. B. इतना ही आ रहा है आपको आगे. अगर इसके आगे आपको सॉल्व करा तो आप क्या करोगे? कैन एनीवन टेल मी? इसके आगे अगर मुझे सॉल्व करना है, सो हाउ यू सॉल्व We दिस? put x square plus y square equals to a square. तो आपको सर्कल है आपका रीजन, तो सर्कल के ऊपर इसको सॉल्व करना है, तो आपको क्या पुट करना होगा? पुट
x इज इक्वल टू, अभी 2 डायमेंशन है, मतलब डबल इंटीग्रल है, तो r लेना है कि a लेना है? मैंने एक्सप्लेन किया था, r होता है इस केस में. सो x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, नेक्स्ट dx dy किससे चेंज हो जाता है? r dr d थीटा से. ये आपका m2 का नॉलेज इसमें चाहिए. dx dy रिप्लेस बाय r dr d थीटा एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? हाँ, R square. r स्क्वायर. एंड व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ r? अगर ये सर्कल है तो r के लिमिट्स क्या है? 0 to a. एंड थीटा के लिमिट्स 2 पाई. ओके, नाउ लेट मी पुट दिस हियर. मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करके देता हूँ. सो थीटा वैरी फ्रॉम 0 to 2 पाई, r vary from 0 to a. This is r square into r dr d theta. अभी लिमिट्स कांस्टेंट है, लिमिट कांस्टेंट है और r और थीटा के टर्म्स सेपरेट है, तो इसके आगे आप क्या कर सकते हो? Separate You can integration. separate the integral. Okay, इंटीग्रल तभी सेपरेट होता है जब आपके लिमिट्स कांस्टेंट है. So -3 as it is, and you can separate this integral. Theta vary from 0 to 2 pi. You can write directly this d theta into r vary from 0 to a. You can consider here r cube dr, and then you can complete. आप डायरेक्टली बोल भी सकते हो आंसर. क्या इसका आंसर? दिस इज -3, दिस इज 2 पाई, एंड व्हाट इज दिस? r raised to 4 by 4 means what? a raised to 4 by 4 na? Yes. So your final answer is -3 pi a raised to 4 by 2. Correct? Yes? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये अप्रोच था इसके आगे. ये थ्योरी एग्जांपल है, एमसीक्यू में आपको यहां तक ही आ रहा है. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे भी ना इलिप्स के ऊपर पूछा है, इलिप्स के ऊपर पूछा है और आपके पास कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हो. तो आई थिंक नाउ यू कैन सॉल्व दिस. ओके, ले लेता हूँ मैं तो. ओके, टेल मी अबाउट दिस. अभी आप डायरेक्टली बोल सकते हो, मतलब अभी जंप करना होगा. सो इट्स नॉट दिस यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम. दिस लाइन इंटीग्रल इज नथिंग बट डैबा n बाय डैबा x माइनस डैबा m बाय डैबा y dx dy. व्हाट इज m हियर? m क्या है? बोलो, sin y. और n क्या है? x इन ब्रैकेट 1 प्लस cos y. So it is equal to over a surface. Yes, tell me dabba n by dabba x क्या होगा? वो 1 plus cos y, और dabba n by dabba y is minus cos y dx dy. So what is the answer? Huh? So what is your answer? dx dy. मतलब इसका सरफेस, इलिप्स का ही सरफेस, तो हमें उतना ही चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन कैसे आने वाले समझ में आ रहा है सबको अभी? Yes, sir. ये 1 मार्क के क्वेश्चन है. इजी का सेक्शन ऐसा ही होगा. सो नाउ आई विल नॉट कंप्लीट दिस नेक्स्ट एग्जांपल 1 मार्क के लिए. ये आपसे हो जाएगा अभी. ठीक है, रिपीटेशन है, सो दैट आई विल अवॉइड. ये भी वैसा ही है, बस ग्रीन्स थ्योरम से डेफिनेशन में लिखना है. ठीक है, मैं उसके डिफिकल्ट क्वेश्चन लेता हूँ. ये भी ओके, नहीं ये डिफिकल्ट है. या सो आई कैन टेक दिस नाउ. ये इसका 2 मार्क का क्वेश्चन है, ग्रीन से रखता. ठीक है, आप बोलो. ओके, so using Green's theorem, so it is equal to over a surface S dabba n by dabba x minus dabba m by dabba y dx dy. Okay, now tell me what is m? Follow xy. What is n? Y square. y square. ठीक है, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं.
सो इट इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर अ सरफेस एस डैबा एन बाय डैबा एक्स इज, अरे जीरो आ रहा है क्या, ये करेक्ट ही है ना, सो इट इज जीरो, ओके, एन का विद रिस्पेक्ट टू वाई इज एक्स, सो दिस इज नथिंग बट डबल इंटीग्रल ओवर एस, ये माइनस बाहर ही लेता हूं मैं, एक्स डी एक्स डी वाई. नाउ व्हाट इज योर सरफेस, सी इज द कर्व, एक्चुअली यहाँ पे वर्ड चाहिए बाउंडेड बाय दिस, ठीक है, तो इन दोनों का जो बाउंडेड रीजन है ना वो आपको लेना होगा, आपको ड्रॉ करना होगा, सी इज द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स, क्या ठीक है, मतलब कर्व है वैसे बाउंड्री है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स. लेट मी ड्रॉ दैट फर्स्ट. बोलो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट y axis. तो यही है क्या, इज दिस, हाँ Yes, sir. हाँ, सो दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. डन. या आप याद रखो, जिनको नहीं पता नहीं है प्रिपेयर करके रखो क्योंकि इस पे क्वेश्चंस रहेंगे 110%. नाउ y इक्वल टू एक्स इज अ लाइन विच पासिंग थ्रू दिस. ठीक है, सो व्हाट इज द सरफेस, ये आपका क्या है फिर, सरफेस है. दिस इज यूर एस, या किसी और कलर से शो करता हूं, बट दिस इज यूर एस. ये विजुअलाइज करना इतना डिफिकल्ट है ही नहीं, ठीक है. हाँ, तो आपको इस रीजन के ऊपर ये डबल इंटीग्रल सॉल्व करना है. कैसे करते हो, याद आ रहा है कुछ, कैसे करते हो, क्या करना होगा, लेट मी टेक अ वर्टिकल स्ट्रिप इन दिस रीजन, ठीक है. हाँ, तो वही वर्टिकल स्ट्रिप में नीचे ड्रॉ करता हूं एज इट इज, एंड फॉर दैट वर्टिकल स्ट्रिप यू हैव टू फाइंड y at bottom, then we have to move this strip from left to right where we have to calculate x. यही करते हो ना आप, Yes, Yes, sir. yes. हाँ? थोड़ा बहुत आपको अभी डबल इंटीग्रेशन का नॉलेज चाहिए, नहीं तो फिर ये होगा नहीं, ओके, एंड उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है. सो जब भी आप वर्टिकल स्ट्रिप लेते हो, व्हेन यू टेक अ वर्टिकल स्ट्रिप, इसका मतलब आप पहले किससे इंटीग्रेट करने वाले हो, आप पहले किससे इंटीग्रेट करने वाले हो, dy से, और उसके बाद dx से. सो ऑलवेज रिमेंबर, वर्टिकल स्ट्रिप इज नथिंग बट dy dx ऑर्डर, वर्टिकल स्ट्रिप इज नथिंग बट dy dx ऑर्डर, ये याद रखो बस पहले. हाँ, नाउ टेल मी व्हाट इज y at bottom, X square. वेरी गुड. What is y at top, X. x. What is x at left side, left मतलब एक सिंगल पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे x क्या है, 0. 0. And what is x at here, तो इस पॉइंट के One. पॉइंट पे आपको x कैलकुलेट करना होगा, क्या होगा ये, 1, 1,1 दिखाई दे रहा है आपको इमीडिएटली, ठीक है. सो यार x इज 1. डन. इतना हो गया तो आपका मतलब, इतना अगर आपको पता है ना तो इस टॉपिक में आपको एक भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं आएगी. बट इफ यू डोंट नो दिस देन आगे थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. सो इट इज इक्वल टू, अभी कैसे लिखना है देखो, ये सेम पार्ट, इंटीग्रल फंक्शन क्या था, x है. आप पहले इसको किससे इंटीग्रेट करने वाले हो, dy से, क्योंकि आपने वर्टिकल स्ट्रिप ली है, और y के लिमिट्स क्या है, एक्स स्क्वायर टू एक्स. फिर आप इसको इंटीग्रेट करने वाले हो dx से, और x के लिमिट्स क्या है, 0 to 1. डन. शायद उन्होंने इतना ही पूछा होगा, इसके आगे नहीं होगा. सो लेट मी चेक. सो टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट. A. ओके, माइनस था ना वो, सॉरी, सो दैट माइनस इज देयर. सो x स्क्वायर टू एक्स 0 to 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट. अभी यहाँ पे उन्होंने आपको यहाँ पे सारे जगह पे dx डिवाइड दे रहा है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, इस फॉर्म में नहीं लिखा. जब आप ये ब्रैकेट डालते हो ना ऐसे, तो उस केस में आपको ऑर्डर के हिसाब से लिखना पड़ता है. इफ यू वांट टू रिमूव दिस ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, ये बस नोटेशन जैसे होता है, ये जो ब्रैकेट मैंने डाला था ना, ये अगर आपको नहीं डालना है ना तो इसको फिर आप ऐसे प्लेन लिख सकते हो. फिर यहाँ पे dx dy आता है. दिस इज नॉट अ ऑर्डर, ये कोई ऑर्डर नहीं रहती इस केस में, ये बस नोटेशन होता है जैसे हम लिखते हैं ना हमेशा dx dy, तो ये होता है लिखने का, ठीक है. सो बट ठीक है, आप ऐसे याद रखो, दैट विल बी बेटर.
ओके डन। तो ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे होगा। और है तो एक करके देता आगे वैसे भी रिपीट होगा। डन। आई थिंक इतनी वैरायटी है इस पे, कॉस डाइवर्जेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया टॉपिक। ग्रीन थ्योरम कैसे एमसीक्यूज आने वाले हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, एंड आई थिंक उस अप्रोच से ही आपको आगे प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट। सो ये वही क्वेश्चन है जो आपको मैंने सॉल्व करके दिया है ऑलमोस्ट, सो दैट यू कैन रेफर हियर। यही था ना अभी, तो इसको आगे बस उन्होंने सॉल्व किया है। देखो x² 2x by dx dy, इसको ही आगे उन्होंने सॉल्व किया है, और फिर दैट आंसर इज 1/50। ये इतना कुछ आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ये अप्रोच अवॉइड कर रहा हूँ। यू हैव टू स्टिक विद द एमसीक्यू अप्रोच। ये वेरीफाई का क्वेश्चन है, मतलब LHS एंड RHS इक्वल शो करने, आपको बस डायरेक्टली आगे का पार्ट ही आने वाला है, डबल इंटीग्रल का पार्ट, तो यू फोकस ऑन दैट पार्ट ओनली। ठीक है, सो नो नीड टू प्रिपेयर दिस थियोरेटिकल क्वेश्चंस। फॉर रेफरेंस यू कैन रेफर, मे बी हम स्किप ही कर रहा हूँ, ऑलरेडी इसके सारे पॉसिबल केसेस हमने कवर किए। नाउ लेट मी स्टार्ट द नेक्स्ट थ्योरम। ओके, सो स्टोक्स थ्योरम। सो स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? लेट एफ बार बी एनी वेक्टर। तो यहाँ पे कोई कंडीशन है कि एफ बार के ऊपर नहीं है, इट मे बी 2 डायमेंशन वेक्टर, इट मे बी 3 डायमेंशन वेक्टर। ओके, सो इट्स एनी वेक्टर, इट्स एनी वेक्टर, एंड S इज द ओपन और मिसिंग सरफेस। यस, हाँ, सरफेस है, S is the open or missing surface bounded by a curve C. Then this is the relation between line integral over C and surface integral over S. ठीक है, so let me explain with one simple example. आपको बॉटल पता है विदाउट, एक बॉटल का एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, कोई भी बॉटल या कोई भी जार भी आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, here you can see this part is open, this part is open। ठीक है, तो ये जो उसकी बाउंड्री है, ये जो इसकी बाउंड्री है, इस कौन से पार्ट की, जो पार्ट ओपन है ना, उसकी जो बाउंड्री है वो क्या है? C है, एंड ये जो सरफेस है इस बॉटल का, दैट इज यूर S। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपके पास रीजन किस फॉर्म में आ रहा है? नाउ वी हैव अ ओपन रीजन, ओपन रीजन, क्लोज नहीं है, वो सरफेस आपका क्लोज नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे सरफेस आपका ओपन है उसकी जो बाउंड्री है दैट इज यूर C, एंड दैट सरफेस तो आपको पता ही है। ठीक है, ओके, सो एंड रिमेनिंग इज यूर सरफेस। ओके, आप चाहो तो एक ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हो। Okay, you can draw this diagram also. ठीक है, हाँ, so like hemisphere जैसे। ओके, तो यहाँ पे you can see here this is your boundary, तो ये ओपन सरफेस की बाउंड्री है, तो दिस इज C, एंड ये जो है ये उसका सरफेस है, therefore it is S। इतना बस समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है, C क्या है और S क्या है। ओके, और फिर उनमें रिलेशन देखो क्या है। सो द लाइन इंटीग्रल f bar dot dr bar इज इक्वल टू डेल क्रॉस f bar dot ds bar। ठीक है, ये एक नोटेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। सो ds bar इज नथिंग बट ओके n कैप इनटू ds, एंड ds इज dx dy। ठीक है, एंड ds इज dx dy। सो f bar dot dr bar इज इक्वल टू डेल क्रॉस f bar dot n cap into ds। ठीक है, so there is one result with respect to this Stokes theorem। Okay, if this f bar is irrotational, can you tell me what is value of line integral f bar dot dr bar? फिर से सुनो क्वेश्चन। 0। Why? Because if it is irrotational, आपको क्या पता है? Del cross f bar is always 0, and since del cross f bar is 0, your RHS is 0. Since RHS is 0, your LHS is 0. ठीक है, so remember if f bar is irrotational, then the line integral is always 0 from Stokes theorem। कहाँ से मिलता है ये रिजल्ट? फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम। सो इफ f bar is irrotational,
योर लाइन इंटीग्रल इज ऑलवेज 0. यहाँ पे उसके लिए रिजल्ट दिए. इफ अ गिवन सरफेस इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन देन एन कैप इज के बार. ओके, गिवन सरफेस इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन देन एन कैप. एक्स वाई प्लेन मतलब अगर ये आपका एक्स वाई प्लेन है तो इसको नॉर्मल क्या आने वाला है, जेड एक्सिस से आने वाला है, सो दैट बिकम एन कैप. ओके सर, के कैप. ओके, एंड ds इज dx dy. ठीक है, इफ इट इज पैरेलल टू xz प्लेन, xz प्लेन को क्या पैरेलल आता है, सॉरी व्हाट इज द नॉर्मल फॉर xz प्लेन, व्हाट इज नॉर्मल फॉर xz प्लेन y, तो n कैप क्या आएगा, j कैप. y मतलब j, z मतलब k, x मतलब i, है ना. इन दैट केस योर ds इज dx dz. कौन से प्लेन में हो, dx dz में, इसलिए ds क्या आएगा, dx dz. सिमिलरली अगर yz प्लेन है तो आपका n कैप आएगा i कैप, है ना, एंड योर ds इज dy dz. ठीक है, विल एक्सप्लेन इन डिटेल डायरेक्टली फ्रॉम एग्जांपल्स. और क्या क्या इसमें है जो हमें लेने की जरूरत है. Just 1 minute. ठीक है, लेट मी टेक सम एग्जांपल. देखते हैं इस पे क्वेश्चंस क्या है एक्चुअली, तो फिर उस हिसाब से टॉपिक ऐड कर देता हूँ अगर कुछ उसमें एक्स्ट्रा लेना है तो. यहाँ पे ज़्यादातर आपको स्टेटमेंट रिलेटेड ही क्वेश्चंस रहेंगे. और कुछ क्वेश्चंस उन्होंने आइडेंटिटीज के ऊपर डाले, देखते हैं. So let me start from this. Okay. But before that, let me write here Stokes theorem. तो क्या था Stokes theorem? Stokes theorem. Okay. Let f bar be any vector and S is open surface bounded by curve C, then what is the Stokes theorem? The line integral over that curve C of f bar dot dr bar is nothing but the surface integral of del cross f bar dot ds bar. Okay, but there is one more way to write this ds bar, but ds bar is nothing but dot product with n cap into ds. ठीक है, ये ds bar की डेफिनेशन है. ds bar is nothing but n cap ds. ओके, ठीक है, इतना तो याद रखो पहले. लेट मी टेक सम एग्जांपल्स. स्टेटमेंट रिलेटेड इसलिए ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता हूँ इसका. पहले तो आपको फॉर्मूला का यूज़ कैसे करना है वो समझ में आना चाहिए. सो लेट मी टेक सम एग्जांपल्स ऑन दिस पार्ट. या क्या क्वेश्चन है, यूज स्टोक्स थ्योरम. सो वी हैव गिवन अ लाइन इंटीग्रल. सो व्हाट इज द वैल्यू इन स्टोक्स थ्योरम, बोलो. सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस एफ बार इंटू, बोलो, टी एस बार. सो इट इज इक्वल टू, बोलो, आपका एफ बार क्या है. दिस इज द स्टोक्स थ्योरम दैट लाइन इंटीग्रल एफ बार डॉट डी आर बार ओवर कर्व सी इक्वल टू दिस. ओके, ये आपका स्टोक्स थ्योरम है. नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज एफ बार हियर. Phi del phi. एफ बार है फाई, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है पर ठीक है. फाई डेल फाई, एफ बार आपका क्या है, फाई डेल फाई. सो इफ आई पुट दिस वैल्यू हियर ऑन RHS यू विल गेट डबल इंटीग्रल ओवर अ सरफेस. ठीक है, डेल क्रॉस एफ बार क्या है, ये. सो फाई डेल फाई, दिस इज इन ब्रैकेट डॉट प्रोडक्ट विथ ds बार. अभी ds बार चाहिए था, नहीं तो n कैप ds चाहिए था, बट लेट मी चेक. अभी के लिए मैं ऐसे रखता हूँ. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, इस यहाँ पे आप ds बार ही एज्यूम करो. B. हाँ, बी ऑप्शन इज करेक्ट. सो जस्ट फ्रॉम अ स्टेटमेंट यू हैव टू राइट डाउन दिस. ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना. ये 1 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे. जस्ट यूज द स्टेटमेंट.
मैंने आपको पहले बोला कि ये क्वेश्चंस इतने ट्रिवियल नहीं है जितना मैं ट्रिवियल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके पीछे अगर ये एन कैप कैलकुलेट करना है ना तो वो सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है, उसका जो ओपन सरफेस है उसकी नॉर्मल देखनी पड़ती है, फिर एन कैप समझ में आता है। सो एज फार एज एमसीक्यूज आर कंसर्न इट डिफिकल्ट यू टू चेक दैट एन कैप ऑल्सो। तो इसलिए नेक्स्ट का ये सारे केस में डीएस बार ही आप एज्यूम करो इफ इट इज नॉट देयर। नेक्स्ट का अभी आप बोलते जाओ। व्हाट अबाउट दिस ऑप्शन है, आई डोंट नो ये यहाँ पे है या नहीं है, बट व्हाट अबाउट दिस अगेन स्टोक्स थ्योरम। क्या होता है स्टोक्स थ्योरम? एफ बार डॉट डी आर बार ओवर क्लोज कर्व इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस एफ बार डॉट डी एस बार। ओके, व्हाट इज एफ बार हियर? व्हाट इज एफ बार हियर? B bar cross R V bar cross A bar. R bar cross A bar, ठीक है। सो योर आंसर इज ओवर S del cross F bar, so that is V bar cross R bar cross A bar dot DS bar. So which option is correct? यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है तो वो नीचे रहेगा। So option C is correct. You can see here. Let me put there. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन है आपको स्टेटमेंट बेस। सो कैन यू टेल मी नाउ 21? आई विल नॉट टेक दिस। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ये एफ बार क्या है यहाँ पे? ए बार क्रॉस आर बार, तो बाय स्टोक्स थ्योरम यू विल गेट दिस इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑप्शन डी डेल क्रॉस ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, तो 1 मार्क में बस आपको स्टेटमेंट में एफ बार की वैल्यू पुट करनी है, उतने ही क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, तो इसको उन्होंने सॉल्व करके दिया है, चलो कर लेते हैं फिर। Where over the area of triangle with vertices is equal to okay, ठीक है, let me first so by Stokes theorem line integral over C f bar dot dr bar is equal to surface integral del cross f bar dot ds bar. ठीक है, now what is f bar here in this question? What is f bar? F bar is equal to y square into I bar x square into j bar minus x plus z into k bar. ओके, सो तो आपको यहाँ पे डेल क्रॉस एफ बार पहले कैलकुलेट करना होगा। सो व्हाट इज डेल क्रॉस एफ बार? क्या है फॉर्मूला? एनीवन? व्हाट इज द फॉर्मूला? डेल क्रॉस एफ बार फर्स्ट रो इज I bar j bar k bar, second row is dabba by dabba x dabba by dabba y dabba by dabba z, third row is y square x square and minus of x plus z. Done. Complete this. So it is equal to I in bracket with respect to y is 0 minus with respect to z is 0 minus j bar with respect to x is बोलो minus 1 by 6 हाँ, and with respect to z is 0 ना 0 k एक मिनट हाँ, with respect to x is 2x, with respect to y is 2y. So I think your answer is j bar plus 2x minus 2y into k bar. हाँ, अभी ना मुझे एन कैप देखना होगा यहाँ पे क्या है। सो इट्स अ ट्रायंगल
over the area of the triangle. So this triangle, if I draw 0 0 0 1 1 0 0 and 1 1 0, तो इन तीनों पॉइंट्स में z की वैल्यू क्या है? 0. तो ये ट्रायंगल कहाँ पे होगा? XY plane. Yes, ओके, sir. हाँ, तो ये मैं लिख लेता हूँ, आपको ये नहीं समझ में आएगा इतने जल्दी है? Okay, let me just copy this part first. ये मैं अच्छे से स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ, तो ये आपको ये याद रहेगा कि हमने क्या रिजल्ट यूज किया है. सो सिंस 0 0 0 0 0 सिंस फॉर दिस वर्टाइसेस z इक्वल टू क्या है? 0. ओके, देयरफॉर ट्रायंगल, देयरफॉर given triangle lie on which plane? XY plane. ये XY plane के ऊपर ही है ना, और it is parallel to XY plane. Yes or no? Z0 है मतलब वो XY plane पे ही होगा. There is no other option. ठीक है. So हाँ, so for XY plane what is my n cap? बोलो, XY plane के लिए n cap क्या होता है? n cap मतलब नॉर्मल. तो XY plane को नॉर्मल क्या होगा? XY plane को नॉर्मल क्या होगा? k ना, याद रखो ये n cap मतलब नॉर्मल. तो जिस प्लेन पे आप हो ना, उसको बस नॉर्मल आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. सो नाउ, तो लेट मी पुट ऑल दिस वैल्यूज हियर. हाँ, तो पहले मैं 1 by 1 लिख लेता हूँ. सो देयरफॉर इंटीग्रल f bar डॉट dr bar क्लोज कर्व c इज इक्वल टू, ये था पहले s डेल क्रॉस f बार डॉट ds बार मैंने लिखा था, बट आपको पता है इट इज नथिंग बट, सो ओवर s डेल क्रॉस f बार, इसको मैंने रिप्लेस किससे किया था? डॉट n कैप इनटू ds. ठीक है. बट जब आप xy प्लेन में हो, ds का मीनिंग क्या होता है? xy प्लेन में कौन सा सरफेस आता है? dx dy सरफेस आता है. तो दिस इज नथिंग बट s. नाउ व्हाट इज डेल क्रॉस f बार? पहले वो लिख लेता हूं, ये वेक्टर था. ठीक है. दिस इज डेल क्रॉस f बार डॉट प्रोडक्ट विद n कैप. क्या कैलकुलेट किया था आपने अभी? k कैप, k बार और k कैप. हाँ, अभी मेरा क्वेश्चन क्या है? ds की वैल्यू क्या आएगी? dx dy. हाँ, ये रिजल्ट मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ. जब आप xy प्लेन पे हो, मैं सारे रिजल्ट एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, आई थिंक दैट विल बी इजी. हाँ, सरफेस पैरेलल टू xy प्लेन, या xy प्लेन पे ही अगर आप हो, तो उस केस में n कैप क्या आता है? बोलते जाओ बस मुझे. k क्या एंड ds क्या आता है? DX plane. dx dy. ठीक है. नाउ सरफेस पैरेलल टू yz प्लेन, n कैप आता है, yz मतलब x नहीं है, i कैप, एंड ds इज dy dz. सरफेस पैरेलल टू xz प्लेन is nothing but n cap, which implies n cap equal to y cap means j cap, and ds is dx dz. Okay, so now can you tell me what is dot product of this? Quickly, what is dot product of this vector with k cap? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है? बोलो जल्दी. 2x minus 2y. j का कोएफिशिएंट आप ये नहीं तो 0 आ जाएगा वो. Zero. ठीक है. सो k here you have to just take the product of coefficients of k. so 2x 2y और 1, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 2x minus 2y. डन. into dx dy.
You can take two commons. Which option is correct? Which option is correct? First. First. A option. Option A. Okay. So, like that, you have to complete these questions. Okay. We'll take few questions in next lecture also. So, in next lecture, we can easily complete our syllabus. So, only one theorem is remaining and few questions we have to take from on this Stokes theorem. Okay.